خدا یسوع مسیح کے انتہائی بزرگ نام ہے، معتبر نام ہے، خالص نام ہے، آپ سب کو سلام۔ خدا تعالیٰ ہے، اس کی رحمت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت اس کے لوگوں کے درمیان رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں پر خدا کرنا وہاں پر مکمل آزادی ہے۔ کلام میں لکھا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ سارے کا سارا سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ زبور کس کہتا ہے خداوند تیرے کلام کا خاصہ سچائی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ حرف آخر ہے، حرف اول ہے اور سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اسے پیش کر کے میں خدا کے کلام کی جانب بڑھوں۔ روایت کے مطابق ہم سب جانتے ہیں کہ آج کھجوروں کا اتوار ہے۔ یسوع مسیح کا اتوار نہیں ہے، یہ کھجوروں کا اتوار ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کھجوروں کا اتوار ہے۔ خیر کلیسیا روایت ہے اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ سلامتی کا اتوار ہے۔ اس روز سلامتی کا شہزادہ یشوع میں داخل ہوا۔ اس کو میں سلامتی کا اتوار کہتا ہوں۔ گڈ سنڈے، جس طرح گڈ فرائیڈے ہے، سلامتی کا جمعہ، یہ بھی سلامتی کا اتوار ہے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سلامتی کا شہزادہ، امن کا بادشاہ آج یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ کھجوروں کی ڈالیوں کے سبب سے اس کا نام کھجوروں کا اتوار پڑ گیا ہے۔ اسے پیش کر کے میں خدا کے کلام کی جانب بڑھوں۔ خدا کا شکر ہے ہم بہت پابند ہیں کہ 10 بجے کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا، سوائے 2 سے 3 لوگوں کے، اتنے ہم پابند ہیں۔ اور دور کی بات تو بہت ہے، بہت اس نے 4 گلیاں چھوڑ کے آنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس علاقہ کے اس گلی کے اس گھر کے لوگ 10 بجے پورے اس چرچ میں نہیں تھے، تو میرا دل کرتا ہے ہم زوردار تالیاں کے لیے بجا لیں۔ یہ تالیاں بجانے کی بات ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں یہ قاضی صاحب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں خدا کی پرائرٹی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، کیوں میں بات غلط کر رہا ہوں؟ اگر خدا کی پرائرٹی ہمارے اندر نہیں ہے، اگر اولیت یا اول درجہ خدا ہی کو نہیں ہے، اس دنیا میں کسی اور کام کو ہے، اپنے میک اپ کو ہے، اپنے بلیسنگ کو ہے، اپنی دیگر چیزوں کو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے وقت کی تعلیم نہیں ہو رہی، یہ پہلے وقت کو دیکھ دیا جائے تو اپنے پورے دن، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل، اپنی پوری طاقت سے کس سے محبت رکھ؟ پراٹھوں سے محبت نہ رکھ۔ جب تک ہم پراٹھا نہیں کھاتے سنڈے کو ہم صرف جناب سمجھے رہتے ہیں۔ دیر از اے فیک کرسچینٹی۔ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن میں خدا کے مذہب پر کھڑا ہوں، مجھے سچی باتیں اور جو درست باتیں ہیں وہی کرنے کے لیے ملی ہیں۔ ہمیں خدا کو وہ درجہ دینا چاہیے جو کہ ہم نہیں دے رہے۔ آج ایک ایونٹ تھا، یہ ایسے ایونٹس ہیں، یہ لینٹ کے سیزن میں سلامتی کا اتوار، کھجوروں کا اتوار، پاک جمعرات، گڈ فرائیڈے، ایسٹر کا دن، عید قیامت المسیح کا دن وغیرہ وغیرہ، یہ اتنے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، سیکرمنٹس ہیں۔ ہم ان کو سیپریٹ کر کے اپنے معاملات کو پہلے درست کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ خدا کے کرنے جاتے ہیں۔ میں 10 بجے جب چرچ میں آیا، سارا ساؤنڈ وغیرہ لیڈ میں نے سارا کچھ کیا۔ ویسے یہ لوگ تو جلدی آ جاتے ہیں لیکن میں ان کے لیے بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، خواتین کے لیے بات کر رہا ہوں جو بڑے قریب سے بھی جو ہے وہ جلدی چرچ نہیں پہنچ سکتے۔ اور پلیز ان باتوں کا مائنڈ نہ کیجیے گا، ان کو ان سے سیکھتے ہیں چیزیں۔ دین آپ کرسچن ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے، بجائے کہ ہم اس بات کو مائنڈ کرتے بیٹھے کہ پادری صاحب نے نہیں کہہ دیا، پادری صاحب نے بات غلط نہیں کی۔ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے بڑھتے پاتا ہے۔ خدا ترتیب کا خدا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہے، 30 تاریخ کو جو ہے وہ پھر عبادت کا اہتمام کر لیا گیا ہے۔ تو خدا کے فضل سے 21 تاریخ کو جمعرات ہے اور شام 5 بجے جو ہے وہ وہاں پر عبادت ہے، جہاں پر پریویس ہماری عبادت ہوئی تھی۔ یہ پچھلے علاقہ میں جا کر جو ہے وہ کیتھولک چرچ کے قریب ہے، ضرور آئیں۔
اور برکت پائیں. آئیے کلام کی جانب کرتے ہیں. میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ نکالیے. یوحنا کی انجیل بارہویں باب کی 12 آیت سے خدا کے کلام کو تلاوت کریں. آن ورڈ پڑھتے ہوئے اس کی انٹرپریشن میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کھجوروں کا اتوار یا سلامتی کا اتوار، یہ جو بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں. ہم نے بہت میسیج اس کے اوپر سنے ہوں گے، بہت سی چیزیں سنی ہوگی. آج ایک نئی روٹ سے، نئے طریقہ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں اور کیا کیا چیزیں ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے. دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، ہاں جی، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے. کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکلے اور کیا پکارنے لگے؟ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. آگے بڑھیے گا. اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا، ہاں جی، اس پر سوار ہوا. پڑھتے جائیں. ایسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے. ہاللیلویا. پڑھتے جائیں. اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی. پڑھتے جائیں. لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. آج تم لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا. اسی وقت سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے. کس لیے لوگ نکلے تھے؟ کہ لوگوں نے یہ سنا تھا اور دیکھا تھا کہ اس نے کس کو زندہ کیا ہے؟ لازر کو زندہ کیا ہے. ایک بہت بڑی بھیڑ اس واقعہ سے بہت حیران کو تھی، اس معجزے سے بہت امیز تھی. اس واقعہ کو سن کر اس کو دیکھنا چاہتی تھی. ایک بہت بڑی بھیڑ اس سبب سے اس کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. اس کے پیچھے آئی تھی کہ کون سا شخص ہے جس نے ایک 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا. آج ہم اسے دیکھ کے جائیں گے. ہاللیلویا. بڑھیا نام کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے جس میں بہت بڑی بھیڑ نکلنے کے لیے دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ وہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پہلی بات ایک بھیڑ وہ تھی جو یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ معجزہ کس نے کیا. آج بھی بہت سے لوگ معجزوں کے لیے آتے ہیں اور معجزوں کے لیے آنا بھی چاہیے، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ معجزے دیکھتے خدا سے ہیں اور کسی سے دے سکتے ہیں. ایک بھیڑ وہ تھی جو کیا دیکھنے کے لیے آئی تھی؟ معجزے. ہو سکتا ہے ہمیں کچھ ایسے بھی ہوں جن کے دل میں یہ توقع ہو کہ ہمیں بھی کوئی معجزہ مل جائے گا. اگر اس نے مردے کو زندہ کر دیا ہے تو یہ مجھے میری بیماری سے کچھ تھا نہیں دے گا. اور بھی بہت سی کیٹیگری کے وہاں پر لوگ پائے جاتے تھے. آج ہم اپنے اسلامی کے اتوار میں، کھجوروں کے اتوار میں سیکھیں گے کہ وہاں پر کتنی کیٹیگری کے لوگ تھے اور جتنی کیٹیگریز دیکھیں گے اپنے آپ کو وہاں پر کمپیریزن کریں گے کہ ہم کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں. آپ کو میں 6 سے 7 اور 8 کیٹیگریز دکھاؤں گا جن میں ہم اپنے آپ کو کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ ہم کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں. کیا وہ تو نہیں جو صرف معجزہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں، ہم میں سے بھی ہیں کیونکہ معجزے خداوند ہی دیتا ہے. اور بھی ہم بہت سی چیزیں دیکھیں گے اسی میں سے. اور میرے ساتھ نکالیے متی کی زندگی سے بات کی طرح 5 یا ایسے بتلاؤ کریں گے. ہم کیٹیگریز کو دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پر کون کون سے تھے. سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. سیون کی بیٹی سے کہو، یہ کیا کوئی ایک بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی؟ سیون کی پہاڑی وہ پہاڑی ہے جو ایک پہاڑی نہیں ہے بلکہ پہاڑیوں کا تسلسل ہے اور پورے یروشلم کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ 7 پہاڑیوں کا ایک پورا مرکز ہے اور ان کے درمیان کی کھوٹے یروشلم ہے.
یہ ساری یروشلم کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں. تو درد کی یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یروشلم کے لوگوں کو کہو کہ دیکھ تمہارا بادشاہ آتا ہے. آگے پڑھ ذرا. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. ہاں جی. بلکہ لاگو کے بچے پر. پڑھتے جائیں. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ایسا ہی کیا. اچھا یہ آج تک ہم سنتے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک سبق میں بتایا ہے کہ یسوع مسیح کا گدھے پر سوار ہونے کا مقصد کیا تھا. حلیمی تھی کہ یسوع مسیح کا میں بڑا حلیم ہوں. یہ تو لکھا ہی ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. یہ سارا ماجرا لکھا ہے کہ یسوع مسیح دیکھ تیرا بادشاہ حلیم ہے اور لاکھوں پر سوار ہے اور گدھے پر سوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت جب دو بادشاہوں کے درمیان میں بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی تھی اور وہ رتھوں اور گھوڑوں اور ہاتھیوں کے ذریعے سے تلواروں کے ذریعے سے جنگ لڑا کرتے تھے, تو دو بادشاہ جب بہت زیادہ خون بہا چکے ہوتے, بہت زیادہ لوگوں کا نقصان کر چکے ہوتے, ایک بادشاہ اپنی مخالف فوج کے لوگوں کا, ان کے علاقے کے لوگوں کا, اور دوسرا بادشاہ اپنے مخالف بادشاہ کی پوری قوم کا ستیہ ناش کر چکا ہوتا, تو ایک ایسا بادشاہ بھی ہوتا جو ان کی صلح کے لیے بیچ میں رہتا, جو ان کو جنگ کو بند کروانے کے لیے رہتا. اور وہ بادشاہ پرانے دور میں, یونان کے دور میں, ٹھیک ہے, اس سے پچھلے دور میں ڈال کے جس میں بھی تھے کہ ایک ایسا بادشاہ تھا وہ گھوڑے پر نہیں آتا تھا. روایت کو پڑھ کے دیکھیں, ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ بادشاہ جو جنگ کو بند کروانے کے لیے آتا وہ ایک گدھے پر بیٹھتا, کیونکہ گدھا حلیمی کی نشانی ہے, گدھا فروختی کی نشانی. پتہ ہے گدھے تو جتنا بھی مارتے ہیں وہ مار سہتا رہتا ہے. کبھی دیکھا گدھے آگے سے برا بھلا کہا اس جگہ مار سہتا رہتا ہے. تو یہ در حقیقت ایک پیسفلنس, ایک ہے حلیمی, ایک امن کی نشانی ہے. وہ بادشاہ جو جنگ بند کروانے کے لیے آتا وہ گدھے پر بیٹھتا اور سفید جھنڈا, سفید جھنڈا کس بات کی علامت ہے؟ امن کی. جامع کون سے پہنے ہم نے؟ سفید جامع پہنے ہیں, امن. یسوع مسیح کی پوشاک کیسی تھی؟ سفید پوشاک تھی. قرآن کیسی لکھا ہے؟ ایسی اگر کوئی دنیا میں دھوبی باہر سے باہر بھی ہو وہ جو ہے اس طرح کی سفید نہیں رہ سکتا. وہ بادشاہ سفید رنگ کا جھنڈا لے کر گدھے پر آتا, دونوں بادشاہوں کے مابین جھنڈا لہراتا اور جو ہے وہ جنگ کو امن میں تبدیل کر دیا جاتا. تو درد کی پرانے احکامات میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس بات سے بھی لی گئی بات ہے کہ ابلیس اور انسان کے درمیان جو جنگ تھی, اب فریسی اور یہودی اور خدا کے لوگ خدا کے رسول میں چلنا چاہتے تھے, اس لیے لڑتے تھے, دعا روز میں کہتے تھے. ابلیس خود سے لڑتا تھا تاکہ ان کو ہرا دیا جائے, شکست دے دی جائے, اور ابلیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا. اسی دوران میں ایک بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا ہے گدھے پر سوار ہو کر اعلان امن کرنے کے لیے جاتا ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہالےلویا. اسی لیے خدا یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر جا رہا ہے تاکہ وہ کون پورا ہو کہ سلامتی کا بادشاہ یہ بادشاہ. آگے بڑھیں جی. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا پڑھتے جائیں. ویسا ہی کیا. ہاں جی. اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اچھا آج تک ہم یہی سنتے ہیں, باتیں بڑی غور والی لوگ میسج چالی ہوئی ہے, کوئی پڑھتے والا ایسی یہ میسج چالی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں نے آگے کپڑے بچھانے شروع کر دیے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے, پتہ نہیں وہاں پر وہ کپڑے لے کر پہلے سے کھڑے تھے, پتہ نہیں کوئی دھونے والے کپڑے تھے, پتہ نہیں بیویاں کپڑے دھونے کے لیے بعد نبی کا لاپے جا رہی تھی, کچھ ایسا سلسلہ ہمارے ذہن میں یا مطلب ایسے سوال اٹھے گی یا اگر اٹھتے ہیں تو ایسے سوچتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے بیشتر کہ لوگ اس کے آگے کپڑے بچھاتے, اس سے پہلے بھی کپڑے بچھائے گئے اور وہ نیچے نہیں بچھائے گئے. دوبارہ اسی آیت کو پڑھے گا, اسی آیت کو دوبارہ پڑھے. اور گدھے اور بچے کو لا کر, ہاں یہ شگرد کے تھے, شگردوں کو یسوع مسیح نے دیکھا تھا کہ جب سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر گدھی کا بچہ بتا ہو پاؤ گے, اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیا کرتے تو کیا کہنا؟ معلوم ہے اس کی ضرورت ہے. ہالےلویا. تو تم سے کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ میں نے ان کو روح میں گائیڈ کر دیا ہے کہ میں مالک ہوں آسمان اور زمین کا, میں مالک ہوں جنت اور پرند کا, میں مالک ہوں پہاڑ اور دریاؤں کا, میں مالک ہوں پوری پرند و انسان کا,
और उन सारे जानदारों का ये मेरी चीज है और इसकी जरूरत है। हालेलुया। कितना मुबारक पैदा हो जिसकी खुदावंत को जरूरत पड़ती है। हम समझते हैं हमारी खुदावंत को जरूरत नहीं। ये जानवरों में से एक ऐसे चीज का चुनाव करना खुदावंत यीशु मसीह का ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सीखने की बात है। वो शेर को नहीं चुन रहा, वो हाथी या भेड़ को नहीं चुन रहा, वो बहुत बड़े बड़े जानवरों को नहीं चुन रहा, बल्कि किसको चुन रहा है? बहुत जीरो लेवल के जानवर को। हम भी आज अगर अपने आप को बड़ा जीरो समझते हैं, मत ये सोचे कि खुदावंत मुझे नहीं चुनने वाला, अरे मेरे में तो टैलेंट नहीं है, मेरे तो जुबान खुशी नहीं है, मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे तो सिंगिंग की आवश्यक नहीं आती, मुझे तो कलाम सुनाना नहीं आती, मुझे तो दुआ नहीं आती। मेरे जीवन में आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु आपको पकड़ेगा, जब यीशु आपको जरूरत महसूस करेगा, जब यीशु आपको ले लेगा, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको कहेंगे, फिर लोग कपड़े भी आगे बिछाएंगे। हालेलुया। फिर लोग कहेंगे खुदा की फातिमा आ रही है, खुदा का फादर आ रहा है। शकीलों ने गधे को खोलकर खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए और क्या किया? पढ़े जरा। और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े ऊपर डाले। क्या किया? अपने कपड़े ऊपर। ग्रह कौन पे ले थे? शकील भी गए थे, तो कपड़े के ऊपर डाले गधी के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, दोबारा पढ़ेंगे तो बात हो जाएगा। जब वो गधी और लादू को यीशु मसीह के पास आए तो लिखा है उन्होंने अपने कपड़े वहां से उतारे और गधी और लादू पर डाल दिए। उनको पता था खुदावंत हलीम है, इसकी हलीमी को खूबसूरती कैसे बचनी है, इसकी हलीमी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसकी हलीमी को फॉरवर्ड कैसे करना है, इसकी हलीमी को दिखाना है, तो लोगों को किस अंदाज में दिखाना है। उन्होंने अपनी ताकि उसको कहते हैं चादर होती है यहूदी के पास खास, बाद लोग सोचते थे लोगों को बिना लाना है क्या, ऐसा नहीं। उनके पास एक शॉल होती थी, यहूदियों के पास एक शॉल होती थी, वो दुआ के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी आपने जीसस मूवी देखी हो, वो बंदा जो रोल अदा कर रहा है यीशु मसीह का, वैसे तो उस लाइन में यीशु मसीह का रोल अदा कर सके, उस शख्स ने सिखाने की घर से जरूरत किया, तो वहां पर उसने को लिया होता है पट्टा सा, इसके ऊपर लाइन बनी होती है। वो चादर जो है ब्रेड शॉल उसको कहते हैं, वो यहूदियों के लोग अक्सर पहनते थे। जिस तरह हमारे दीगर हमसाए लोग हैं वो अमामे पहनते हैं, सफाई साफ रखते हैं, यहाँ पर बड़ी रवायत है, वो उनके पास हुआ करती थी, शहीदों के पास हुआ करती थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी दुआ वाली वो चादर उतारी और गधी पर डाली। जब लोगों ने देखा कि शहीदों ने गधी और लादू के ऊपर अपनी चादरें डाल दी है, तो जो दीगर देखने वाले लोग थे उन्होंने भी अपनी चादरें उतारी और फिर अपने दुपट्टे उतार दिए, प्रेस शॉल उतार दी और उन्होंने आगे बिछाना शुरू कर दी। उनको पता है इसके आगे हम मशीनरी में जाकर ये प्रेस शॉल लेकर दुआएं करते थे, अरे वो आज सामने आ गया है, आज सारी चादरें उसी के आगे बिछा दी जाए ताकि वो करीब से हमारी बातों को सुन ले। आइए उसके आगे कपड़े बिछा दें, वो प्रेस शॉल उन्होंने आगे बिछाना शुरू कर दी। रवायत की ताबत ये है। तो इससे बेहतर के लोग, इससे बेहतर के दीगर अदर पीपल उसके आगे चादरें या कपड़े बिछाते, सबसे पहले शुरुआत यीशु मसीह की शरीर में हुई। तो बता हमारा काका, हमारा बादशाह गधी के ऊपर बैठने के लिए गला किसकी निशानी है? हलीमी की निशानी है। आज अगर हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने हमें हलीमी का दर्श दिया है, तो हम भी किसी तरह से, हम भी किसी तौर से, आप पता है चादर एक इज्जत होती है, ऐसे ही है एक रिस्पेक्ट की बात होती है, चादर अपनी इज्जत की बात होती है। उन्होंने यीशु मसीह की हलीमी की खातिर अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं किया। आज हमें जो गाली देता है हम तीन देते हैं। हम ये नहीं प्रेजेंट करना चाहते कि यीशु मसीह की हलीमी कैसी खूबसूरत है, यीशु मसीह की हलीमी कैसी जबरदस्त है, हम उसको प्रेजेंट करना नहीं चाहते, हम उसकी हलीमी को प्रेजेंट नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल करते हैं। शकीलों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसकी हलीमी को रिप्रेजेंट किया। पहले वो लोग जिन्होंने अपने कपड़े गधी और लादू के ऊपर डाल दी, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। आगे बढ़े, आगे कौन से लोग? और वो ऊपर बैठ गया और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डाली। भीड़ के अक्सर लोगों ने, अक्सर से मुराद क्या होता है? अक्सरियत, मेजॉरिटी, बहुत ज्यादा लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी बताइएगा कौन सी है? और औरों ने दरख्तों से डालियां
उन औरतों के पास, मेरी बहनों के पास उस वक्त में, मेरी माओ के पास उस वक्त में हो सकता है प्रेम शाम ना हो सकता है उनकी इज्जत आपको दुपट्टा हो, वो भागी गई, उन्होंने दरख्तों से डालियां काटी, उन्होंने कहा किसी चीज के साथ तो खुदा को राज करें। हालेलुया। कोई तो चीज हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम खाली हाथ जाए तो क्यों जाए, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह, वो आका कुल आ रहा है, कोई एक चीज उसके सामने लेकर जाए। दरख्तों की डालियां उन्होंने फटाफट से काटी और खुदावंत के आगे ले गए। मैं बेटा की बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं बात करने लगा हूं तो किसी एक चीज, वो आपका टैलेंट है, वो आपकी कोई चीज है, आपकी कोई अच्छी स्किल है, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप अच्छी दुआ कर लेते हैं, आप अच्छी प्रीचिंग कर लेते हैं, आप अच्छी टीचिंग कर लेते हैं। हम में से कौन खुदावंत के पास क्या लेकर आता है? उनकी समझ में जैसा आया उन्होंने कहा खुदावंत इसी से खुश हो जाएगा, आपको और डायरेक्ट आने में मेहनत लगती है। क्या ख्याल है? ऐसे ही सुबह ये मुसीब भाई लोग हैं, सुबह 7 बजे, रात को इस जगह पे क्या थोड़ा लेकर आया हूँ, सुबह ये लाकर 6:30-7 बजे ये काट के लेके आए, खुदा को होकर के मेहनत लगती है। नहीं मुसीब भाई मेहनत लगती है, उन्होंने मेहनत की, दरख्तों की डालियां काटी। आगे बढ़े जी, और उन्होंने दरख्तों की डालियां काटी और भीड़ जो उनके आगे आगे जाती और आगे आगे जाती। कितनी कैटेगरी होगी? पहले वो जिन्होंने गद्दी के ऊपर और लातों के ऊपर अपने कपड़े फैलाए, दूसरी कैटेगरी वो जिन्होंने खुदावंत के आगे अपने कपड़े फैलाए, तीसरी कैटेगरी वो जिन्होंने दरख्तों की डालियां बड़ी मेहनत से काट कर उसका इस्तेमाल करना चाहा, चौथे कौन से हैं? जो उसके आगे आगे चल रहे थे और आगे बढ़ रहे। और पीछे पीछे चली आती थी। हाँ जी, और पीछे पीछे भी चली आती थी, ये भी याद रखें। एक आगे आगे थी, एक पीछे पीछे थी। मैं बात नहीं की आपको स्टैंडर्ड बताऊंगा, इनके माइंड बताऊंगा, इनकी कैटेगरी में से मैं बताऊंगा कि इनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, कि ये किस तरह से आगे आगे चलने वाले और पीछे पीछे चलने वाले, कपड़े गद्दी के ऊपर डालने वाले और कपड़े खुदा के यीशु के आगे बिछाने वाले, डालियां लेकर आने वाले। और उसके बाद क्या लिखा है? पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना। ये भी एक खास किस्म का दुआए था जो पुकार पुकार कर काला में कह रही थी, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। हालेलुया। ये भी एक कैटेगरी है। आगे बढ़े। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? एक कैटेगरी ये भी है जिनको पता ही नहीं था कि ये बंदा कौन है। यीशु मसीह की इतनी ज्यादा मशहूरी थी, आज भी दुनिया में मौजूद हो रहे हैं, दुनिया में रिवाइवल है, बेदारी है, ये उजागर हो चुकी है कलीसिया, दुनिया में यीशु का नाम रोजे रोशन की तरह चमक रहा है। लोगों को आज भी नहीं पता कि वो कौन है और उनके मसीह भी है, जिनको हमारे 2 से 3 मेजर इवेंट्स नहीं पता, कि देखिए हमें मसीह का ही पता, उनको ये भी पता गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है, उनको ये भी पता। और बताते क्रिश्चियन ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं, कहते हैं ये कौन है। आगे बढ़ेंगे। भीड़ के लोगों ने कहा कि गलील के नासरत का नबी यीशु है। एक वो भी है जो उसको महज नबी समझते हैं। आज भी लोग हैं जो उसको महज नबी समझते हैं, वो कहता है वो खुदा का बेटा नहीं, वो महज नबी है। ऐसे लोग जो बड़ी तरकीब करते हैं, महज नबी है। एक कैटेगरी ये भी थी। आगे बढ़ेंगे। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। हाँ जी। और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों को। और इससे पहले मत्ती ने ये वाली बात बोलने की एक कैटेगरी वो भी है जो पास आके भला क्या कहते हैं, जब लोग नारे गा रहे हैं होशना मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। एक ग्रोह ऐसा भी है, एक कैटेगरी ये भी जो आगे कहते हैं फिर तो सुनने वाले क्या कह रहे हैं, अरे इनको चुप करवा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुनाफी के खिलाफ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च के खिलाफ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, कुछ लोग ऐसे भी होगा गैर मुस्लिमों की बात नहीं कराई, बात याद करो। और गैर मुस्लिम भी ऐसे हैं जिनका भी ये कहते हैं यार तेरे लागू नहीं हो गया, एक बार भी क्यों लागू होगा, ये क्यों हो गया, जाना पड़ेगा। कैटेगरी ऐसी भी है गैर कौमी तो वो क्या कहते हैं कि ये मसीह का नाम ही क्यों लेते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मसीह होते हुए भी
इस बात को मलहूज़े खातिर ही नहीं रखते कि जनाब चर्च की कोई वैल्यू रखता है, कलीसिया की कोई वैल्यू रखती है। कलीसिया की बड़ा क्या वैल्यू है? कलीसिया की वैल्यू है, मुबाशर की किताब का पहला बाब उसकी 13-14 आयत को जाकर पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है मैंने 7 चरागाह देखे, और वो 7 चरागाह क्या है? 7 कलीसियाएं हैं। और आदम रासा और शख्स ये यीशु से अपनी उलूहियत में फिरता कहां है? कलीसियाओं में। फिर वो ये भी कहता है जब उसने मुझे आवाज दी तो मैंने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, तो क्या उसने कहा यीशु को देखा? उसने देखा 7 चरागाह, उसने कलीसिया देखी। आज लोग कलीसिया में शामिल होना नहीं चाहते। लोग कहते हैं घर में भी बात हो जाती, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं टीवी पे बात करिए, देखिए मैंने कभी भी इस चर्च के लिए किसी को इनवाइट नहीं किया, अब मैं करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया के साथ जुड़ना बरकत की बात है, क्योंकि कलीसिया में खुदा का बेटा जिसकी आंखें आके सोना की मानद है वो फिरता है। इसलिए ये किताबों को दर्ज लिखा हुआ, इसलिए कि पानी जोसेफ कह रहा है, इसलिए किताबों को दर्ज लिखा हुआ कि वो अपनी कलीसियाओं में फिरता है। अगर किसी ने यीशु के जलाल को देखना है तो वो कलीसिया में शामिल हो जाए। बाद लोग कहते हैं तो चुप करवा, ये क्या कही जा रहे हैं? ये कह रहे हैं मुझे बादशाह, और मैंने पहले भी बताया था ये क्यों उसको मना कर रहे हैं? मना इसलिए कर रहे हैं कि मशरकी गेट से जो है वो जनाब हेरोदिस ने आना था, और हेरोदिस ने बहुत ज्यादा मानो बाप दे के जाना था। पता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है चर्च में या मस्जिद में बहुत ज्यादा माल नहीं लगाई जाती, पैसे वगैरह लगानी जाती है कि चले आइए आप अपने चर्च को जाओ। यहूदी और फरीसी लोग हेरोदिस के जो है वो चक्कर में थे कि हेरोदिस ने आया, उन्होंने चूने के साथ जनाब बड़ा वेलकम और बड़ा जनाब डेकोरेट किया हुआ था, हर तरह से उन्होंने रास्ते को आरास्ता किया हुआ था कि अब जो है हेरोदिस हाथी के ऊपर बैठकर या घोड़ों के रथ के ऊपर आएगा और बड़ा देखेगा कि यहूदियों ने बड़ा जबरदस्त वेलकम मुझे किया है, और जाते हुए कोई टिप्स लगा के जाएगा, वो पैसा दे के जाएगा। यूं देख रहे हैं दूसरी तरफ से ज़ैतून के पहाड़ की तरफ से, हालेलुया, ज़ैतून के पहाड़ की तरफ से एक ऐसा बादशाह आ जाता है जो घोड़े पर सवार नहीं है, जो रथ पर सवार नहीं है, जो ऊंटों पर सवार नहीं है, जिसके साथ बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि उसके साथ एक गधा है और गधे का बच्चा है। और जब वो आता है लोग तालियां लेकर उसकी तरफ चले जाते हैं, लोगों के ऊपर मुकाशा नाज़िल हो जाता है कि ये बादशाह का बादशाह आ रहा है, तो सलामती का बादशाह है, जिसका प्यार ये है कि वो एक कौम को जाए नहीं बल्कि बड़े इंसान को जाए। इस बादशाह की बड़ी खासियत है, उसकी तरफ हम बात करें। पहले मैं आपको कैटेगरीज बता दूं, मैं और ज्यादा आपके 10 मिनट होगा। एक्सक्यूज मी, पहली कैटेगरी में जी यीशु मसीह के शरीर है, उन्होंने प्रेजेंट किया यीशु मसीह की हलीमी को, उन्होंने उसको और खूबसूरत कर दिया और ज्यादा उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बयान करना शुरू कर दिया। हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह की हलीमी को लोगों के आगे प्रेजेंट करें अपने अंदर से, जिस तरह शागिर्दों ने अपनी शहादत के जरिए से उसकी हलीमी को प्रेजेंट किया लोगों के सामने। दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने उन्होंने अपनी अच्छी चीजें खुदा के आगे पेश की। हालेलुया। हो सकता है किसी की हाथ की बुनी हुई चादर हो, और ऑब्वियसली इस दौर में तो होगी हाथ की बुनी हुई, क्योंकि मशीन या टेक्निकल दौर नहीं था, जदीद दौर नहीं था। उन्होंने बड़ी बड़ी महंगी चादरें भी खुदा के आगे फैला दी। हमारा मयार ये है, मैं सख्त बातें ये करता हूँ, हम लास्ट वाला हिस्सा, हदिये का भी लास्ट वाला हिस्सा, मैंने चर्च में कभी हदिये का प्रश्न नहीं दिया। मैं जो बात कर रहा हूँ बरकत की बात कर रहा हूँ। कलाम में पहले फलों से उसकी ताज़ीम करो। पहले फलों से मुराद ये है आपकी खेत का पहला फल, आपकी जो है वो सैलरी का पहला फल, आपकी हर चीज का फर्स्ट फ्रूट खुदावंद के हुजूर में जाएगा। उन्होंने अपनी अच्छी चीजें खुदावंद के हुजूर में पेश की। दूसरी कैटेगरी के लोग जो मसीह के लिए मेहनत कर गए, हालेलुया, बहुत बड़े बड़े आदमी मसीह के लिए मेहनत कर गए। ये मेहनत एक छोटा सा था कि उन्होंने दरख्तों की डालियां काटी, किसी ने फौरन से देखें। आप खुदावंद के लिए यहाँ से ये भी बात सीखने को मिलती है, खुदावंद के लिए कर सकते हैं। हमारे ज़हन में बात आती है क्योंकि हमारा रुझान खुदावंद की तरफ नहीं है, उनका रुझान खुदावंद की तरफ था। उनके ज़हन में फौरन से या कपड़े ले सिर्फ घोड़ियों के तौर पर पहने
रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, कोई फूलों का हार नहीं है। ऐसा कहते सामने दरख्त लगे हुए खुदा की कुदरत से उगे हुए हैं, उन्हीं से डालियां काट कर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर खुश हो जाएगा। और कौन सा है इस बात से? हालेलुया। जो ये कहने मेरे ऊपर आप सीखे कहते हैं, मेरे ऊपर बहुत पतियां फूल कहते हैं, दरख्तों की डालियों से डालियां काट कर यहाँ से एक सबक मिलता है। इस कैटेगरी में वो मेहनती लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। चर्च में, घर में, बाजार में, बाहर जिस जगह पर भी उनको थोड़ी बहुत खिदमत मिलती है वो यीशु मसीह के लिए करना चाहते हैं। और मेरे अजीजों चौथी कैटेगरी लोग हैं जो मसीह के आगे आगे चल रहे थे और मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। ये बड़ा कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ व्यवस्थित रहना चाहते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के आगे पीछे रहना चाहते हैं, जिनको ये मुकाबला मिल गया है कि यीशु मसीह के साथ व्यवस्थित रहने में ही हमेशा की जिंदगी है और बरकत है। उसके आगे और पीछे चलने वाले, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग। हालेलुया। हम देखें हम किस तरह हैं, उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उसके लिए मेहनत करने वाले हैं, उसके लिए अपनी आबरू का ख्याल ना करने वाले हैं। वो कौन सी कैटेगरी के लोग? हम वो तो नहीं है जो यीशु मसीह को बड़ा दूर से जानते हैं, ये नासरत का कोई नबी है, यीशु मसीह नबी है। अरे यीशु मसीह कलमा खुदा है और यूहन्ना की इंजील में यीशु के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम में क्या था? नबी था। कलाम नबी था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। अगर आपकी थ्योलॉजी आज तक कम रही है, अगर आपकी थ्योलॉजी आज तक इस लेवल तक नहीं पहुंची कि आप यीशु मसीह को खुदा या खुदा का हकीकी बेटा या बिना नबी समझ सके, हो सकता है किसी ने उसको वैल्यू नहीं दिया हो, कैसा कर तो हमने आपको नबी क्या हम तुझे नबी मान लेते हैं, हमारे साथ वादा कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते थे? यीशु मसीह कहते थे अरे मेरी ना सुनो, मेरे बाप की आवाजें सुन लो। वो आसमान से आवाजें दे देकर कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अज़ा इब्न जमील सैयदना बहाई, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरी ना सुनो, इसकी सुन लो, जिसको तुम अपना खुदा कहते हो, मैं उसका बेटा हूँ। वो कहते थे नबी मान, नबी मुझे मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो मोटो था वो ये था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया। जो लोग अभी तक इस ख्याल में पड़े हैं कि यीशु मसीह पता नहीं कहाँ थे या नहीं थे, इस तस्वीर में है, उनकी कैटेगरी ये है, ये नासरत के शहर का कैटेगरी है। अपनी कैटेगरी मैंने आपको बताई है। वो कहते हैं यार इस वक्त थोड़ी चेंज चला लेना है, ये मसला है सारी तरह अपनाने और हमारे मुताबिक क्रिश्चियंस का ये मसला है। तो वीकेंड पे या तो इवेंट्स अटेंड करते हैं, शादियां वगैरह, या फिर मूवीज देखते हैं, वो बड़े रिलैक्स हैं, 15 बजे चली जाना। हमने कौन सा सुबह जाना है? अगर जाना हो तो फिर तो जाओ जल्दी सो जाए। उनको जब कौन पता चला सुबह 10 बजे पहुंचना है, उनको पता मैं 11-12 बजे जाने कोई बात नहीं, फिर मामला दे देंगे, सो जाते 2 बजे सो जाएंगे, ठीक है। अरे मेरे चीजों में बताना चाहता हूँ इन लोगों की तरफ देखिए जिन्होंने अपना अच्छा पार्ट ऑफ लाइफ खुदा को दिया। वहां पर पता है ईदे ख्याल हो रही थी, ईदे ख्याल हो रही थी, लोग खाने में बना रहे थे उन कपड़ों के साथ, उन डालियों के साथ। उन्होंने जब देखा उन्होंने खाने वहीं पे छोड़ दी। उन्होंने कहा जिसके लिए हम खाने बनाते हैं, जिसकी याद में खाने बनाते हैं, अरे वो तो जब की पहाड़ी की तरफ से आ गया है, छोड़ो इन खानों को, उस जगह पर जाओ जो ये कहता खुदा का खाना आदमियों के दरमियान है। अब तो वो हमारे खाने में आ गया। प्रायोरिटीज बहुत काउंट करती है। इस पैसेज में से मैंने ये सीखा है, प्रायोरिटीज हमारी प्रायोरिटीज खुदाओं के लिए बड़ी कम है। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ और वहां पर मैंने बच्चों को देखा, चाहते हैं जो प्रायोरिटी में खुदा की तालीम को जो है वो देते हैं। बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि मेरा दिल लग जाता है, हालांकि वहां पर तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक अच्छे मेयार की तालीम दी जाती है, लेकिन बच्चे कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा था आज क्लास में कर मैं फलां किसी जगह पर मसरूफ था और कल सर जो है वो किसी बच्चे के घर में चले गए उसको लेने के लिए। क्लास की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी तो बच्ची जो है वो घर में कपड़े धो रही है। वालिद साहब गए प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हाँ आप आए हैं, वो अपने कपड़े धो रहे थे। आप मैनेज करें नहीं क्या कपड़े धो, टाइम आपका वही है तो खुदाओं के लिए निकाल कर आप उसको दे देते हैं, वो सबसे कीमती टाइम है। मैं चीजों में बताना चाहता हूँ, हमने प्रायोरिटीज खो दी है। शागिर्दों से सीखें, उनकी खुदाई कलीसिया के लोगों से सीखें,
खुदा यीशु मसीह की प्रायोरिटी क्या है। आखिरी बातें करके मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। उन्होंने क्या कहा जी, होशना मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंत के नाम से आता है। खुदावंत के नाम से क्या कहा, खुदावंत का क्या नाम, मुकाशवादी बात है, पति जी निकाले। पहली बात इसलिए पढ़े खुदावंत के नाम से आता है के मायने देते हैं कि क्यों वो कहते हैं मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। पहली बात इसमें है, आज बात को सीखेंगे कि क्यों उन्होंने कहा मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, पढ़ते जाएं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था, क्या कहा था, पूरा हो। हाँ जी, और एक कुंवारी कामला होगी पढ़ते जाएं। और बेटा जनेगी, हाँ जी, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। जिसका तर्जुमा क्या है, खुदा हमारे साथ है। ये है वो मुबारक। लोगों को पता था, मत्ती रसूल ने रिपोर्ट किया है, वहां पर शकील भी थे। लोगों को पता था मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंत के नाम से आता है, क्योंकि खुदावंत के नाम का मतलब क्या है, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यीशु को उर्दू तर्जुमे का लफ्ज है, असल यीशु का नाम हमें पता क्या है, यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब है यहोवा बचाता है। हालेलुया, यहोवा बचाता है। वहां पर भीड़ के ऊपर ये मुकाशवा नाज़िल हो गया कि यहोवा जो बचाता है वो तजस्सुम इख्तियार करके आ गया है। इसको मुबारक कह दो, इसको होशना कह दो। और ये बादशाह कोई आम बादशाह नहीं है। इस बादशाह की चंद खासियतें, मैंने दुनिया के बादशाह देखे हैं, किसी एक रियासत के बादशाह, दो मुल्कों के बादशाह, यहाँ तक कि सिकंदर आज़म को देखा है, आदि से ज्यादा दुनिया का वो बादशाह कहलाया, लेकिन वो सिर्फ बादशाह कहलाया, वो बादशाह का बादशाह नहीं कहलाया। वहां पर जो गले पर बैठ कर आ गया था वो खाली जमीन ही का नहीं बल्कि आसमान का भी बादशाह है। वो कहता है देखो आसमान और जमीन का कोई इख्तियार मुझे दिया गया। हालेलुया, ये बादशाह की खासियत है। वो खाली जमीन का, खाली अरब का, खाली यूरोप का, खाली जुनूब का बादशाह नहीं, बल्कि वो जमीन और आसमान का बादशाह। बल्कि ये चीज में लिखा हुआ कैसे बात, आसमान और जमीन का कोई इख्तियार नहीं। हालेलुया, ये बादशाह बड़ा जबरदस्त बादशाह। इस बादशाह की और खासियत भी है, ये कायनात का सबसे पहला बादशाह। हालेलुया, और कायनात का सबसे आखिरी बादशाह भी यही बादशाह है। इसलिए इसको कहा गया है बादशाहों का बादशाह। लोगों को पता चल गया था कि बादशाह आ कौन सा रहा है। मेरे जीवन को और खासियत सुनी इस बादशाह की, जिसको लोग कहते हैं होशना मुबारक है वो बादशाह। और मुबारक का मतलब इस्लाम की है। हम कहते हैं दूसरे को मुबारक हो कैसे बेटा है, मुबारक को क्या करता है, इसका मतलब है सलामती हो आप पर। मुबारक के मायने है सलामती के। उसको मुबारक इसलिए कहते हैं, मैंने बादशाह लेकर मैंने बड़े बड़े बादशाह पर रिसर्च की, तुगलक खानदान से लेकर जो मिस्री के ताल्लुक से बहुत पुराना बादशाह गिना गया, जिसके रास्ते मिले हैं, जिसकी रियासत के आसार मिले हैं, और नबूवत से लेकर मादीनुल फासिल की बादशाह और अब मौजूदा बादशाह में हम देख रहे हैं किस तरह लड़की में किस तरह लोगों को कत्लेआम किया जाता है, किस तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह की मुखालिफ फौज को मारता है, उसके इलाकों को हलाक कर देता है, उसके इलाके के लोगों को हलाक कर देता है। और पहले वाला बादशाह अपने दूसरे मुखालिफ बादशाह की फौजों को और लोगों को और इलाकों को हलाक कर देता है। इस तरह देखते हैं यूक्रेन और रूस के माबीन जंग लगी हुई है, बादशाह एक दूसरे की कौमों को हलाक करते जा रहे हैं। इस बादशाह की खासियत ये है कि वो कहता है मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ये दुनिया को जिंदगी देना चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता। इसकी खासियत ये है, बादशाहों की तरह नहीं करता कि फौजियों को भेजे, बादशाहों की तरह नहीं करता कि सिपा सलारों को भेजे ताकि वो मर जाए। ये बादशाह ऐसा बादशाह है जो अपने आप को कुर्बान कर देता है ताकि भाई जो इंसान जिंदगी पाए, लोग जिंदगी पाए। ये ऐसा बादशाह है जो खुद जाकर लड़ता है। हालेलुया, ऐसा बादशाह है जो खुद जाकर लड़ता है। कभी देखा बादशाह खुद लड़ते हो? बादशाह सिपा सलारों को भेजते हैं
फौजों को भेजते हैं, आर्मी को भेजते हैं। मेरे बाद बादशाह ये लिखा है, जो खुद मैदान जंग में निकल आता है, जो खुद मकतल में आ जाता है और फिर मकतूल कहलाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, फिर भी फतह इसी की होती है। हालेलुया, ये बहुत बड़ा बादशाह है। नेपोलियन ने इस बादशाह के बारे में कहा, एक इंटरव्यू के दौरान, नेपोलियन अमेरिका का बादशाह हो गया है, यूरोप की बहुत बड़ी रियासत है, सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा, आप कब तक समझते हैं कि आप अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर बादशाह कर लेंगे? आप कब तक समझते हैं कि आपकी बादशाह करेंगे? ये बात तारीख में कोड अंदर है उसकी। नेपोलियन ने कहा, हमारी बादशाह जाती रहेगी, मैं हो सकता है 5 साल या 10 साल हुकूमत कर लूं, मैं 10 साल का बादशाह होगा, हो सकता है मेरे बाद कोई 16 और बादशाह है, वो अमेरिका के ऊपर हुकूमत करे, हो सकता है वो 20 साल या 25 साल बादशाह रहे। अरे यीशु मसीह की तरफ देखिए, क्योंकि हमने जंगों के जरिए से, हमने असले के जरिए से जंगें लड़कर फतूहात हासिल की है, बादशाह हासिल की है, इसलिए हमारी 10 और 20 साल की बादशाहत है। वो जिसने अपनी जान देकर जंग हासिल की है, उसने फतह हासिल की है, वो अमर तक बादशाह रहेगा। उसकी बादशाह इसलिए खत्म नहीं हो गई, हमारी बादशाहतें खत्म हो जाएंगी 10 साल 20 साल के बाद, यीशु की बादशाहत अमर तक कायम रहेगी। इसलिए उसने असले के जोर पे नहीं, उसने मोहब्बत के जोर पे जंग किया। हालेलुया, ये बादशाह हलीम है, दिल का फ्रोकर है। आखिरी बात, इस बादशाह का नाम हलाक करवाने वाला है, इस बादशाह का नाम है बचाने वाला। हालेलुया, ये बचाने वाला बादशाह है, ये करवाने वाला बादशाह नहीं है। यही वो बादशाह है जो खाली जिंदों के माबेद, जिंदों के ऊपर ही बादशाही नहीं करता, बल्कि इस बादशाह के बारे में मैंने मुकाशवा की पहली किताब के पहले भाग में पढ़ा है कि ये वो बादशाह है जो कहता है, मैं मर गया था, अब जी उठा हूं और अब्दुल तक जीता होगा, मौत की दुनिया मेरे पास है। हाल में वाकई पर बिगाड़ ये बादशाह है, ऐसा कोई बादशाह नहीं है। इसलिए यूहन्ना उसको देखता है और कहता है, मैंने गोया सेवा किया और बर्रा देखा तो अपना खून बहाकर कौमों में से लोगों को खरीद लेता है। और फिर मैंने देखा उसके हाथ में एक तेज लोहाई तलवार देखी, उसकी आंखें आग के शोला तलवार है। और फिर ये भी कहता है, जब मैंने उसे देखा उसके पाँव में मोटा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर ये कहकर हाथ रखा, हाल मेरे वहाँ की खुशियाँ मेरे पास है, मैं मारा जरूर गया था तुम्हारी खातिर, लेकिन अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद तक जिंदा होगा। आगे चलकर जो है वो देखता है, कहता फिर मैंने उसकी इमरान और खुशहाल कर क्या लिखा हुआ देखा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। अरे मेरे वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, आज सलामती के इस दरबार में, खुदावंदों के इस दरबार में उस हकीकी बादशाह को अपनी जिंदगी में वेलकम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में वेलकम करें। आपकी जिंदगी में वो सलामती लाना चाहता है, आपकी जिंदगी में मुबारकबादी लेके आना चाहता है। देखिए वो हवा में बातें नहीं करता, मैंने उसकी सलामती देखी है, मैंने उसकी मुबारकबादी देखी है, मैंने उसका जलाल बड़े करीब से देखा है। मैं इसलिए मुरादी से शर्माता नहीं हूँ, कौमों उनको कबीलों के दरमियान कहता हूँ, मेरा बादशाह बादशाह का बादशाह है, मेरा यीशु बादशाह है। आइए अपने घर पर प्रे हो यीशु। हालेलुया, आइए प्लीज